Good morning, everyone. Welcome to our online classes, and today we will discuss question answers of chapter number 20. So let's start. First question is, with the help of which chemical fertilizers do we make the soil fertile? हम कौन से chemical fertilizers का use करते हुए soil को क्या बना सकते हैं? Fertile बना सकते हैं. So chemical fertilizers like urea, DAP, diammonium phosphate, zinc phosphate, NPK, etc. are used to make the soil fertile. Second question is, why should we not use plastic bag for throwing away the leftover food? Leftover food means हमारा जो बचा हुआ खाना है उन्हें उसे थ्रो करने के लिए हमें प्लास्टिक बैग्स का यूज क्यों नहीं करना चाहिए? Because first point is plastic is non-biodegradable products, means they are not rotten and they not mix in the soil. The animals swallow these bags and die. Animals इन bags को swallow कर लेते हैं and ये जो bags हैं इनकी stomach में जाकर stuck हो जाते हैं food pipe में and animal die हो सकते हैं. These bags make the soil infertile and ये जो bags हैं ये soil को भी क्या बनाते हैं? Infertile बनाते हैं. Third question is, mention the disadvantage of using polythene bags. Polythene bags को use करने की disadvantage means हमें क्या इसके नुकसान हो सकते हैं. So first one is environmental pollution. जो polythene bag हैं वो किसे pollute करते हैं? Environment को pollute करते हैं because ये non biodegradable हैं. तो जब आप इन्हें soil में throw करेंगे land पर तो ये land pollution करती हैं. Second one is blockage of drainage system. जो आपका ड्रेनेज सिस्टम है जहाँ से आपके घर का पानी जाता है सीवरेज में, वहाँ अगर पॉली बैग्स फंस जाते हैं और उन पाइप्स को ब्लॉक करते हैं तो वो आपके ड्रेनेज सिस्टम को ब्लॉक कर सकते हैं. एंड थर्ड वन इज मेक द सॉइल इनफर्टाइल. सॉइल को क्या बनाते हैं? इनफर्टाइल. Now fourth question is, enlist the product obtained from the following crops and complete the table given below. यहाँ पे हमें एक साइड में क्रॉप्स के नेम दिए गए हैं. इन क्रॉप से हम क्या प्रोडक्ट्स गेन कर सकते हैं वो हमें बताना है. फर्स्ट वन इज मस्टर्ड. मस्टर्ड मीन सरसों एंड इससे हम क्या गेट करते हैं? ऑयल एंड ऑयल केक्स. ठीक है, सरसों का तेल एंड ऑयल केक क्या होता है? हम सरसों के सीड लेके गए फैक्ट्री में, ठीक है, या जो मशीन है जिससे ऑयल हम निकालते हैं उसमें जब हमने इन सीड को डाला एंड ऑयल निकाल लिया, ऑयल निकालने के बाद में जो रिमेनिंग सॉलिड प्रोडक्ट बचता है ना उसे हम क्या कहते हैं? ऑयल केक्स कहते हैं. और ये एज अ फूड एनिमल को दिया जाता है. ठीक है, एनिमल का जो हम चारा उन्हें देते हैं उसमें हम इन ऑयल केक्स को यूज कर सकते हैं. सेकेंड वन इज कॉटन. कॉटन से हम क्या गेट कर सकते हैं? कॉटन फाइबर एंड कॉटन सीड. थर्ड वन इज शुगर केन एंड वी कैन गेट फ्रॉम शुगर एंड जैगरी. ठीक है, शुगर केन का जो जूस होता है, गन्ने का जो रस, उससे हम शक्कर, शुगर, चीनी एंड गुड़ बना सकते हैं, गेन कर सकते हैं, ऑब्टेन. Now next question is, write name of any three animals found around your area and the products obtained from them. उसे क्या हम animal से क्या products gain कर सकते हैं? So first animal is cow and we get it from milk, curd, cheese and dung. Second animal is buffalo. We can get milk, curd, cheese and also we can get dung. And third one is sheep. We can uh, obtain milk, wool and meat. Write the name of three animals found near your area and name the business associated with them. ठीक है, इसमें हमें three animals के नेम बताने हैं जिनसे हम बिजनेस कर सकते हैं कोई भी. ठीक है, सो फर्स्ट एनिमल इज काउ एंड बिजनेस इज सेलिंग मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट. हमने कल भी डिस्कस किया था. डेयरी प्रोडक्ट मीन्स मिल्क से जो बनने वाले प्रोडक्ट हैं लाइक घी, चीज, पनीर, कर्ड एक्सेट्रा. दीज आर डेयरी प्रोडक्ट्स. Second animal is horse. We can use horse in horse riding, riding horse cart and racing. And third one is used in polo sports. Games में भी हम horses को use कर सकते हैं. Third animal is camel. We get wool and riding of camel cart used in transportation. Seventh question is, what is the effect of rain on the crops? Crops का rain पर क्या effect होता है? So if it rains timely, the crop production
in the farms is high. अगर टाइमली रेन होता है जितना हमारी क्रॉप को रिक्वायरमेंट है तो जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो क्या होगा, हाई होगा, बहुत ज्यादा अच्छी क्रॉप होती है. बट समटाइम इट डज नॉट रेन टाइमली और ड्यू टू हैवी रेनफॉल और नो रेनफॉल एट ऑल द क्रॉप स्पॉइल. और अगर बारिश टाइम पर नहीं हुई है या फिर बहुत ज्यादा बारिश है या बहुत कम बारिश है तो वो क्रॉप को क्या कर देती है, स्पॉइल कर देती है, डैमेज कर देती है. Many times the crops are infected and hence destroyed. And बहुत बार क्या होता है, जो crops है उसे infect कर देते हैं and destroy कर देते हैं. It has a very adverse effect on the earning of the farmers. और ये farmers की earning पर बहुत ही negative effect डालती है. ठीक है, अगर crop अच्छी नहीं होगी तो farmer की जो earning है, means जो money है वो भी उन्हें money earning भी उनका अच्छा नहीं होगा, negative effect आएगा उसका. What are the bad effects of chemical fertilizers and pesticides? Chemical fertilizers हमने पढ़ा था कि हम क्रॉप की जो फर्टिलिटी है उसे इंक्रीज करने के लिए जो या तो हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं या फिर उसके अलावा हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं ना. एंड पेस्ट कंट्रोल करने के लिए इंसेक्ट जो हमारी क्रॉप को डैमेज करते हैं उनके लिए हम इंसेक्टिसाइड का यूज करते हैं, है ना. बट ये पेस्टिसाइड का यूज करते हैं. बट अगर हम एक्सेस अमाउंट में फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं तो उसका हम क्या बैड इफेक्ट आएगा क्रॉप पर. So due to the excessive uses of chemical fertilizers, there is a gradual decrease in the productivity of the land. Land की जो productivity है, crop को grow करने की जो उसकी power है, वो क्या हो जाती है, reduce हो जाती है धीरे धीरे. They may cause health problems like headache, skin disease, stomach related problems and restlessness. और chemical fertilizer से human beings को भी health related problem हो सकती है. Now, ninth question is write the names of the tools used in agriculture in your surrounding. आपके surrounding में agriculture में farms में जो भी use होने वाले tools हैं, आपको 3 tools के name बताने हैं. So first one is plug, second one is spade and axe. Okay. स्पेड मीन्स क्या होता है, स्पेड मीन्स होता है जिसे आप बोलते हैं कुदाल. ठीक है, पीछे एक लकड़ी का एक उसमें हैंडल होता है और आगे लोहे का उसमें एक टूल लगा होता है जिसे हम स्पेड या कुदाल बोलते हैं. ठीक है, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब एनिमल हस्बेंड्री एज अ बिजनेस. एनिमल हस्बेंड्री को हम एज अ बिजनेस कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो आपको बताना है. सो एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, मीन्स एनिमल को जब हम क्या करते हैं, उसे उनको हम रियरिंग करते हैं. एनिमल का पशुपालन जिसे हम बोलते हैं. ठीक है, तो हम एनिमल्स को जब रियर करते हैं, पशुओं को रखते हैं, तो उसे हम एज अ बिजनेस कैसे हम यूज कर सकते हैं. सो एनिमल हस्बेंड्री इज ऑल्सो अ ग्रेट इम्पॉर्टेंट इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस. उसे हम बिजनेस की तरह भी यूज कर सकते हैं. मैनी पीपल डू डेयरी बिजनेस बाय रियरिंग कैटल्स. कैटल्स को रियर करके, पशुओं को पालकर हम डेयरी बिजनेस कर सकते हैं ना. मीन्स उनसे मिलने वाले जो प्रोडक्ट है लाइक मिल्क है उसे सेल कर सकते हैं. अदरवाइज मिल्क से हम डेयरी प्रोडक्ट्स बनाकर उसे भी सेल कर सकते हैं. People who rear horses have many occupations like riding a horse cart, participating in a horse racing, arranging horses for sports and arranging horses for the brides and grooms. Marriages में है ना, in the marriages, and we get wool by rearing sheep. And अगर हम sheep को rear करते हैं तो हम उससे wool get कर सकते हैं. If there is less production of crops in any farmer's field, then find out the reason for the same. अगर किसी भी फार्मर के फील्ड में जो क्रॉप प्रोडक्शन है, फसल का जो उत्पादन है, वो अगर लेस है तो हम उसके क्या रीजन हो सकते हैं, हमें कुछ रीजंस फाइंड आउट करने हैं. सो रीजन फॉर द लेस प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, फर्स्ट वन इज अनअवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज. मींस वाटर नहीं मिल रहा है प्रॉपर क्रॉप को. फेलियर ऑफ सॉइंग ऑफ क्रॉप्स इन टाइम. हमने जो सीड सॉ कर किए थे वो टाइमली नहीं किए थे ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मनी की शॉर्टेज से. बिकॉज मनी की शॉर्टेज से उन्हें जो प्रॉपर फैसिलिटीज हैं या जो टूल्स चाहिए हमें या फिर गुड क्वालिटी के सीड्स चाहिए वो नहीं मिल पाएंगे. ठीक है. लॉस ऑफ क्रॉप्स ड्यू टू एनिमल्स. एनिमल्स अगर क्रॉप को डैमेज कर देते हैं. एंड द लास्ट वन इज सम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक ड्रॉट, हैवी रेनफॉल,
hailstorm means ओले गिरना etc. can decrease the production of crops. तो सब reasons भी crop का जो production है उसे decrease कर सकते हैं. Now next question is, what question will you ask the horse breeder to get information regarding the diet, maintenance and their business? अगर आप किसी horse breeder means जो घोड़ों को पालते हैं ऐसे किसी person से आप क्या क्वेश्चन पूछेंगे उनकी डाइट के बारे में कि वो उन्हें क्या खाना देते हैं, मैं कैसे मेंटेन करते हैं एंड वो क्या बिजनेस करते हैं हॉर्सेस को यूज करते हैं. सो हियर आर 5 क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी हॉर्सेस आर देयर इन योर स्टेबल. स्टेबल होता है घुड़साल या अस्तबल, जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता है उसे स्टेबल कहते हैं उस प्लेस को, ठीक है. सो हाउ मेनी हॉर्सेस आर देयर इन योर स्टेबल. सेकंड क्वेश्चन इज हाउ मेनी पीपल आर देयर टू टेक केयर ऑफ द हॉर्सेस. घोड़ों की देखभाल करने के लिए, हॉर्सेस की टेक केयर करने के लिए कितने लोग हैं वहां पर. व्हाट डू यू फीड देम. आप उन्हें क्या फीड करते हैं, मींस खाने के लिए क्या देते हैं. When and where do you use these horses? आप इन horses को कब और कहाँ use करते हैं. And next question is how much income do you get by using these horses? And इन horses को use करते हुए आप कितना income means कितना money gain करते हैं, ठीक है, earn करते हैं money. Next question is which question would you ask to the person doing farming and animal husbandry to get information related to his business, right? Any 5 question. अब हमें फार्मिंग करने वाली पर्सन से एंड एनिमल हस्बेंड्री मींस जो एनिमल्स को रियर कर रहे हैं उनसे हमने 5 क्वेश्चन पूछे, ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम डू यू गेट द सीड्स ऑफ द क्रॉप फॉर सोइंग इन द फार्म्स. अपने फार्म्स में आप जो सीड सो करते हैं क्रॉप को ग्रो करने के लिए वो आप कहाँ से गेट करते हैं. सेकंड क्वेश्चन इज व्हिच इंप्लीमेंट्स आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर. इस कौन से टूल यूज किए जाते हैं एग्रीकल्चर में. व्हिच फर्टिलाइजर्स डू यू यूज इन एग्रीकल्चर. आप कौन से फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं अपने फील्ड में. एंड व्हाट इज द यूज ऑफ एनिमल इन एग्रीकल्चर. एनिमल्स का क्या यूज है एग्रीकल्चर या फार्मिंग में. एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एनिमल रियरिंग विद एग्रीकल्चर. फार्मिंग के साथ साथ एनिमल रियरिंग करने के क्या बेनिफिट्स हैं ये भी आपका क्वेश्चन हो सकता है. नाउ 14 question is visit any cow shed in your nearby area and find out what sort of arrangement are done for dairy products. Okay, तो आपको अपने नियर बाय एरिया में जाना है जहाँ पर आपको काउ शेड हो जहाँ पर, और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए उन्होंने वहाँ पे क्या अरेंजमेंट्स किए हुए हैं वो आपको उनसे वहाँ आपको पता करना है. So arrangement of proper cow sheds and availability of food for the cow के लिए proper shed का arrangement and food की availability होती है and providing milk giving fodder to the cows. Fodder means क्या होता है ऐसा फूड या ऐसी घास या चारा जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, और एनिमल्स को ऐसा फूड प्रोवाइड करवाया जाता है जो कि उनकी जो मिल्क प्रोडक्शन है, ठीक है, जो मिल्क देती है काऊ है बुफेलो है उससे क्या करता है मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है. ऐसा उन्हें फॉडर या फिर जो चारा है घास है वो खिलाई जाती है. स्पेशल अरेंजमेंट फॉर काऊ बेबी और काफ. काऊ के बेबी को क्या कहते हैं काफ कहते हैं, ठीक है. तो उनके बेबीज के लिए काफ के लिए स्पेशल अरेंजमेंट किए जाते हैं बिकॉज बेबीज को थोड़ा स्पेशल केयर की रिक्वायरमेंट होती है तो इसलिए उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट किए जाते हैं. If the cow become ill, arrangement of veterinary doctors for their treatment. And अगर वहाँ रहने वाली जो cows हैं वो ill हो जाती हैं, बीमार हो जाती हैं, उन्हें कोई disease हो जाती है. कल हमने different disease के बारे में discuss किया था ना, animals को होने वाली जो disease हैं, तो उनके लिए एक veterinary doctor वहाँ पर arrange किया जाता है जो कि उनका proper treatment करता है. Arrangements of funds for रनिंग ऑफ काउ शेड, ठीक है, एंड काउ के शेड्स बनाने के लिए, ठीक है, ताकि उन्हें प्रॉपर उन्हें धूप नहीं लगे, ठीक है, बारिश के सर्दी से गर्मी ठंड जो भी जितने भी वेदर्स हैं, जिस तरह हमें वेदर डिफरेंट काइंड्स के वेदर्स हैं लाइक हीट है कोल्ड है रेन है, इन सब से प्रोटेक्शन के लिए किसका रिक्वायरमेंट रहता है हाउस का, है ना. उसी तरह ही काउस को के लिए जो शेड है वो रिक्वायर्ड होता है, तो वो फंड इकट्ठा करते हैं उसके लिए ताकि उनके जो काउ शेड है उनको प्रॉपरली उनका अरेंजमेंट किया जा सके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
डिफरेंट फार्मिंग एक्टिविटी आर गिवन इन द पिक्चर। आपको नीचे कुछ पिक्चर्स दिखाई जाएंगी जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट फार्मिंग एक्टिविटीज दिखाई जाएंगी एंड आपको क्या करना है, राइट द नेम ऑफ दीज फार्मिंग एक्टिविटी। आपको इन फार्मिंग एक्टिविटी के नेम लिखने हैं कि ये कौन सी फार्मिंग एक्टिविटी है। सो लेट्स सी द पिक्चर। और देखिए यहाँ पर ये फार्मिंग एक्टिविटी आपको दिखाई गई है, ठीक है। तो इस फार्मिंग एक्टिविटी में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए जो एक ट्रैक्टर है उसकी हेल्प से जो फील्ड है उसमें काम किया जा रहा है और इस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, टिलेज बोलते हैं, ठीक है। टिलेज मीन्स होता है उस खेत की क्या करना, जुताई करना, ठीक है, बुआई करना, या फिर जो सीड से पहले हम लैंड को प्रिपेयर करते हैं ना, क्रॉप को ग्रो करने से पहले, है ना, सीड को ग्रो करने से जो लैंड की सॉइल की लूजनिंग का काम होता है जिसे हम प्लगिंग भी कहते हैं ना, तो वो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। इसे टिलेज या प्लगिंग आप कुछ भी कह सकते हैं जो ट्रैक्टर की हेल्प से की जा रही है, या आप एनिमल की हेल्प से भी कर सकते हैं, ऑक्स है, कैमल है, उसकी हेल्प से भी हम टिलेज कर सकते हैं। देखिए सेकंड पिक्चर देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लांटिंग किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जो फील्ड है उसमें जो क्रॉप्स हैं वो लगाई जा रही है, ठीक है। या तो बहुत सारी क्रॉप्स ऐसी होती है जिसमें आपको सॉइल को आपने इल्यूजन किया, प्लगिंग जो प्रोसेस है वो किया एंड सीड लगाते हैं आप, ठीक है। बट कुछ ऐसे क्रॉप्स होती हैं जैसे राइस क्रॉप है, ठीक है, उसमें आपको क्या करना होता है, उस सीड से ग्रो एक जो छोटा प्लांट होता है जिसे आप सैपलिंग कहते हैं, ठीक है, वो आपको पानी का, आपका जो फील्ड है उसमें पानी भरा होता है, बिकॉज जो राइस है उसे ग्रो करने के लिए वाटर की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो उस पूरे फील्ड में पानी भरा होता है। आपने देखा भी होगा मे बी, जो बच्चे कभी गए हैं फार्म्स वगैरह में, और वहां पर जो सैपलिंग्स है या जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं उन्हें लगाया जाता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे प्लांटिंग प्रोसेस हो रहा है। ये देखिए एंड ये है पेस्टिसाइड श्रिंकिंग। इस पिक्चर में क्या किया जा रहा है, पेस्ट कंट्रोल किया जा रहा है, जो इंसेक्ट्स हैं उनसे क्रॉप को बचाने के लिए यहाँ पे पेस्टिसाइड को स्प्रिंकल किया जा रहा है, फील्ड में फैलाया जा रहा है। ओके, सो हियर आवर चैप्टर नंबर 20 is complete.